مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آج شام وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ مشترکہ مفادات کونسل سیکریٹریٹ نے اجلاس کی طلبی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ، وفاقی وزراء سمیت 25 شرکاء کو خصوصی دعوت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے شریک چیئرمین زیک ویٹکوف کی ملاقات۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے پرکشش مواقع۔ بین الاقوامی سطح پر تیزی سے کرپٹو کرنسی کو اپنانے والی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ باصلاحیت نوجوان ملک میں کرپٹو کرنسی کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ چین کی طرف سے پاکستان کی حمایت کا اعلان۔ انسداد دہشت گردی کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ پاکستان کے سیکیورٹی خدشات کا ادراک ہے۔ پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا بھارت اور پاکستان پر ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرنے، کشیدگی میں کمی اور خطے میں استحکام کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے پر زور۔ بھارت کے جنگی جنون پر نیو یارک ٹائمز کی اہم رپورٹ۔ اندرونی خلفشار سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کی پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے فوراً بعد بھارت نے پاکستان پر الزام دھر دیا۔ مودی کا پاکستان کے خلاف اقدامات میں تعاون مانگنے کے لیے درجنوں ملکی سربراہان سے رابطہ۔ دیگر ریاستوں کا بھارت سے ٹھوس شواہد پیش کرنے کا مطالبہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں بڑھ گئیں۔ بھارت میں کشمیری طلبہ کو ہراساں اور بے دخل کیا جا رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز۔ بھارتی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار۔ مودی سرکار کی ایما پر ٹائمز اسکوائر نیو یارک میں احتجاج کی کوشش۔ نام نہاد احتجاج سرحدی دہشت گردی کے خلاف پہلے سے طے شدہ تھا۔ بھارت کے احتجاج کو پاکستانی تارکین وطن اور مقامی افراد نے ناکام بنا دیا۔ بوکھلاہٹ کی شکار مودی سرکار نے سینکڑوں پاکستانی یوٹیوب چینلز کو بھارت میں بند کر دیا۔ پہلگام فالس فلیگ، بھارتی فوج کا ایک اور فیک انکاؤنٹر بے نقاب۔ مقبوضہ کشمیر کے ایک اور رہائشی الطاف لالی بھارتی فوج کے فیک انکاؤنٹر میں شہید۔ الطاف لالی کو ان کے گھر سے 22 اپریل کو بھارتی فوج نے اغوا کیا تھا۔ بھارت 1989 سے اب تک 7,000 سے زائد کشمیریوں کا ماورائے عدالت قتل کر چکا۔ رپورٹ۔ دریائے جہلم میں اضافی پانی چھوڑنے کا ایک اور بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب۔ بھارت کے پاس دریا کا بہاؤ روکنے یا اس میں تبدیلی کی کوئی صلاحیت نہیں۔ اضافی پانی چھوڑ کر سیلابی صورتحال کا تاثر دیا جا رہا ہے۔ مظفر آباد کے علاقے ڈومیل سے 22,000 کیوسک کا ریلا گزرا۔ پاکستان کو آبی سلامتی اور پانی کے لحاظ سے فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں، ماہرین۔ پہلگام واقعے پر پاکستان کا موقف واضح۔ دہشت گردی کی جنگ میں ہم نے ہزاروں جانوں کی قربانی دی، معیشت نے اربوں ڈالر کا بوجھ سہا۔ جعفر ایکسپریس واقعے میں دہشت گردوں نے معصوم لوگوں کو یرغمال بنایا۔ بھارت کے علاوہ پوری دنیا نے مذمت کی۔ پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی غیر ملکی میڈیا کو بریفنگ۔ پاکستان ایک ذمہ دار اور پرامن ملک ہے۔ پانی روکنے کی کوشش جنگی اقدام سمجھا جائے گا، امن کی خواہش کمزوری نہیں۔ سالمیت اور خود مختاری کا دفاع کرنا جانتے ہیں، کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات کے بغیر الزام پاکستان پر دھر دیا گیا۔ دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے داروں کا طرز عمل غیر ذمہ دارانہ ہے۔ پاکستان تو خود سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کا سوات میں تقریب سے خطاب۔ افغانستان سے دراندازی کی کوشش ناکام۔ شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز کے فیضان الخارج کے خلاف مؤثر کارروائی۔ 54 دہشت گرد جہنم واصل، بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم اور صدر کی دراندازی ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔
भारतीय प्रोपेगेंडे के बावजूद कारोबारी बिरादरी मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म, हुकूमती पॉलिसीज पर भरपूर एतमाद। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,16,658 तक पहुंच गया। पाकिस्तान एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका। हमने मईशत के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम, एतमाद बहाल और तरक्की का अमल दोबारा शुरू किया। कर्जों के हुजूम को दरमियानी मुद्दत में 60% से भी कम किया जाएगा। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी से हर साल GDP का 2% बचने की तवक्को। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब, मुल्की माशी और समाजी तरक्की की राह का खाका पेश किया। हुकूमत डिजिटल मईशत के फरोग के लिए कोशां है। हम कैशलेस इकॉनमी की जानिब बढ़ रहे हैं। IT के शोबे को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना चाहते हैं। मुल्क के दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट की रसाई यकीनी बनाई जा रही है। IT शोबे की बरामदात में इजाफा मईशत के लिए खुशाइंद है। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा ख्वाजा की DFDI फोरम में गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल इक्तिसादी तामुन तंजीम के पहले फोरम बराए पायदार तरक्की में शिरकत के लिए तुर्कमानिस्तान पहुंचे। दौरा उड़ान पाकिस्तान इकदाम के तहत खत्ते में राबताकारी, इक्तिसादी इंजमाम और पायदार तरक्की के अज़्म का मसर। अशकाबाद पहुंचने पर वजीर मनसूबाबंदी का पाकिस्तानी सफारत खाने का दौरा, सफारती अमले और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान इक्तिसादी तामुन के बेपनाह इम्कानात पर जोर दिया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी पार्लिमानी वफ़द के हमरा मराकश पहुंच गए। चेयरमैन सेनेट जुनूबी पार्लियामेंट्री फोरम के तीसरे एडिशन से खिताब करेंगे। अपने खिताब में आलमी और इलाकाई उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। कासाब्लांका एयरपोर्ट पर चेयरमैन सेनेट और पार्लिमानी वफ़द का पुरतपाक खैर मकदम। मराकशी पार्लियामेंट के नायब सदर और दीगर आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। काम करने की जगहों पर हिफाजत और सेहत का आलमी दिन। दुनिया भर में डिजिटल निज़ाम अपनाया जा रहा है। काम की जगहों पर हादसात की रोकथाम के लिए पुरअज़्म हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कारकुनों की हिफाजत, सेहत और इज्जत को यकीनी बनाएं। जदीद टेक्नोलॉजीज़ को मरबूत करके काम की जगहों पर ज़्यादा कारआमद, महफूज और सेहतमंद माहौल पैदा कर सकते हैं वज़ीर आज़म। हर वर्कर को महफूज और सेहतमंद माहौल की फराहमी बुनियादी हक है। महफूज वर्क प्लेस माशी तरक्की और खुशहाल माशरे की बुनियाद है। पंजाब में वर्कर्स की फलाह बहबूद, उनकी हिफाजत और सेहत के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। काम की जगहों को महफूज, सेहतमंद और खुशहाल बनाने के मिशन में यकजा होकर किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ। इजरायली फोर्सेस की जानिब से गजा की पट्टी पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइल के सफ़ाकाना हमलों के नतीजे में मजीद 53 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 115 जख्मी। इसराइली नाकाबंदी के बायस महसूर इलाके में कहत की संगीन सूरत हाल पैदा होने का खदशा। इलाके में सेहत की सहूलतों, अद्वियात और खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। कनाडा के वज़ीर आज़म लिबरल पार्टी के उम्मीदवार मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव पार्टी के पियर पोलिएव के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। मुल्क के कई शहरों में गर्मी की लहर, मौसम शदीद गर्म और खुश्क, दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने की पेशगोई। गर्मी की लहर अगले 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर ज़रूरी तौर पर बराह रास्त धूप में ना निकलें। महकमा मौसमियात। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग का 17वां मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 64 रन से कामयाबी। 189 रन के ताक़ुब में ज़ल्मी की टीम 15.2 ओवर्स में सिर्फ 114 रन ही बना सकी। फ़हीम अशरफ की 5 और खुरम शहजाद की 2 विकेटें। PSL के मैचेस PTV स्पोर्ट्स एशिया पर बराह रास्त।
पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में आज आराम का दिन। इवेंट के 18वें मैच में कल मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। पॉइंट्स टेबल पर नाकाबिल शिकस्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर काबिज। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के 6-6 पॉइंट्स, कलंदर्स दूसरे, किंग्स तीसरे नंबर पर। पेशावर ज़ल्मी की टीम चौथे, कोयटा 5वें और मुल्तान का आखिरी नंबर। एशियन फुटबॉल चैंपियंस लीग एलीट जापानी क्लब कावासाकी फर्डिनेंडेंट ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में कावासाकी ने कतर की टीम असद को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराया। लास्ट फोर में कावासाकी की मुकाबला क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम सऊदी क्लब अल नसर से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में सऊदी क्लब अल हिलाल और अल अहली मद्दे मुकाबिल होंगे। अर्जेंटीना प्रीमियर डिवीजन अपर्टोरा फुटबॉल टूर्नामेंट सुपर क्लासिको मैच में रिवर प्लेट ने बोका जूनियर्स को शिकस्त दे दी। रिवर प्लेट ने बोका जूनियर्स के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी समेटी। पॉइंट्स टेबल पर बोका जूनियर्स पहले और रिवर प्लेट 5वें नंबर पर। और एटीपी मास्टर 1000 मैड्रिड ओपन मैन सिंगल्स दिफाई चैंपियन रूस के आंद्रे रूबलोव का सफर तमाम। कजाकिस्तान के एलेक्जेंडर बबलिक ने अब तक शिकस्त दे दी। टॉप सीड जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़्वेरेव, रूस के डैनियल मेदवेदेव क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज, नॉर्वे के कैस्पर रूट की भी लास्ट 16 में रसाई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं अयाज असलम। PSL स्पेशल और दीगर खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज शाम वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में चारों सूबों के वज़रा आला, वफाकी वज़रा समेत 25 शुरका को खुसूसी तौर पर दावत पर बुलाया गया है। मुश्तरका मफादात कौंसिल सेक्रेटेरिएट ने इजलास की तलबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर तेजी से क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाली मईशतों में से एक है। बासलाहियत नौजवान मुल्क में क्रिप्टो करेंसी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आलमी मालियाती कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के शरीक चेयरमैन ज़ैक विटकॉफ्स की सरबराही में वफ़द से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में क्रिप्टो करेंसी जैसे माशी लेन देन के मुतबादिल तरीक़ों के तरवीज के लिए कवायद व ज़वाबित की तश्कील पर काम तेज़ी से जारी है। मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े मौजूद हैं। वफ़द ने पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के शोबे की तरवीज के लिए सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार किया। WLF के शरीक चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया की तेज़ी से उभरती हुई मईशतों में से एक है। वफ़द ने खित्ते और आलमी सतह पर अमन के क़याम में पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू की। नायब वज़ीर आज़म ने चीन के वज़ीर ख़ारजा को मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने भारत के यकतरफा गैर कानूनी इक़दामात और पाकिस्तान मुखालिफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को वाज़ेह अल्फाज में मुस्तरद किया। इसहाक़ डार ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की जानिब से निहायत जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया गया और इस हवाले से हम आलमी बरादरी के साथ राबिते में हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों के लिए बीजिंग की हिमायत का इरादा किया। वांग यी ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान आहिनी दोस्ती और सदाबहार तस्वीराती शराकतदारी का जिक्र करते हुए कहा कि चीन पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात को बखूबी समझता है और अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसकी कोशिशों की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों की हिमायत इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए चीन के वसी अज़्म का हिस्सा है।
چین حملے کی شفاف اور منصفانہ تحقیقات کی بھی حمایت کرتا ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور کشیدگی کو کم اور خطے میں استحکام کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کریں۔ چینی وزیر خارجہ کا بیان پہلگام حملے کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے وقت سامنے آیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے چین کی مسلسل اور غیر متزلزل حمایت پر پاکستان کی جانب سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کے امن، سلامتی اور پائیدار ترقی کے مشترکہ مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے ہر سطح پر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی سے گفتگو کی اور انہیں موجودہ علاقائی صورتحال سے آگاہ کیا، جس میں بھارت کے جھوٹے الزامات، بے بنیاد پروپیگنڈے اور سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر التوا میں ڈالنے کا غیر قانونی فیصلہ شامل ہے۔ انہوں نے خطے میں امن و استحکام کو فروغ دیتے ہوئے اپنے قومی مفادات کے دفاع کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ نے بات چیت اور مسائل کے پرامن حل کے ذریعے کشیدگی کم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے فعال رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ موقع دینا چاہتے ہیں۔ آج جب میں یہاں پر ہوں تو ہم پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ جو سپورٹس ہے، جہاں پر ہم پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں 4 ایز ہیں: ایجوکیشن، امپلائمنٹ، انگیجمنٹ، انوائرمنٹ، ان کے اوپر کام کر رہے ہیں، جن پہ میں ابھی بات کروں گا۔ لیکن ان 4 ایز کے اندر سپورٹس ٹیلنٹ ہنٹ جو ہے، جب ہم انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم ہر طرح کی انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ جب ہم آپ کو آگے آنے کے موقع دینے کی بات کرتے ہیں تو چاہے وہ انوویشن ایوارڈز ہیں، چاہے وہ لیپ ٹاپس ہیں، چاہے وہ اسکالرشپس ہیں، چاہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا میدان ہے، آرٹ اینڈ کلچر کا میدان ہے، آئی ٹی کا میدان ہے، سپورٹس کا میدان ہے، تو آج یونیورسٹی آف سوات کو ایک اور اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ جو پرائم منسٹر سپورٹس ٹیلنٹ ہنٹ ہے، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہمیشہ سے آئی ایم پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ میں 10 سال ان کی کیبنٹ کا حصہ رہا جب وہ پنجاب کے چیف منسٹر تھے، اور ہم نے چاہے وہ پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ تھا جس میں ہم بچے اور بچیوں کو اسکالرشپس دیتے تھے ان کے ٹیلنٹ کی بنیاد پر، اور ایسے بچے اور بچیوں کو جن کے اندر ٹیلنٹ تو موجود تھا لیکن وسائل نہیں تھے، تو ان بچے اور بچیوں کو آگے آنے کا موقع دینا۔ اتنی بڑی تعداد میں ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ میں صرف آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ 4.5 لاکھ سے اوپر جو پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ میں فنڈز دیے گئے، آئی واز دا ایجوکیشن منسٹر ان پنجاب، تو جب ہم نے دیکھا کہ ہم نے بچوں کی زندگیاں بدلیں، تو شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تو آتے ہی جو انہوں نے پہلا کام کیا، انہوں نے پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کو پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کر دیا۔ اور جو آپ وائس چانسلر صاحب بات کر رہے تھے نا، اب آپ بچے اور بچیاں اگر اپنا کوئی پرسو کرنا چاہتے ہیں فردر ایجوکیشن، یا اب کی ایجوکیشن کے اندر اگر آپ کو کوئی ایشو بن رہا ہے تو اب آپ کو چکر نہیں لگانا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ ڈیجیٹل یوتھ ہب، جب یہ بریک آؤٹ سیشنز ہوں گے آپ کو اس کی ڈاکومنٹریز بھی دکھائی جائیں گی۔ ہم ایک ایسا سسٹم لے کر آ گئے ہیں کہ جس کے اندر آپ کو اسکالرشپ چاہیے، آپ کو کسی کے پاس نہیں جانا، آپ نے ڈیجیٹل یوتھ ہب پہ جا کے اپلائی کرنا ہے، چاہے وہ پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے انڈر اسکالرشپ ہے، چاہے وہ HEC کے اسکالرشپس ہیں، چاہے وہ دنیا بھر کے اسکالرشپس ہیں۔ یہاں پر ہمارے محترم علماء کرام اور مدارس کے بچے بھی بیٹھے ہیں۔ ہم مدارس کو پہلی دفعہ انکلوڈ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مدارس وہ مدارس ہیں جن کے اندر وہ بچے پڑھتے ہیں کہ ان کو بھی اگر راستہ نہ دکھایا گیا تو پاکستان کے اندر جو کلچرل ڈیوائیڈ اور جو کلاس ڈیوائیڈ ہے
جب تک اس کا خاتمہ نہیں کریں گے پاکستان آگے نہیں چل سکتا. تو ہمارے لیے مدارس بھی اتنے ہی اہم ہیں, ان میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں بھی اتنے ہی اہم ہیں, اور جہاں پر ہم اسکالرشپس کی ڈفرینٹ سٹریمز میں بات کر رہے ہیں تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ڈیجیٹل یوتھ ہب جس میں آپ پاکستان کے اندر کون سی اپرچونٹیز اویلیبل ہیں اسکالرشپس کے حوالے سے, دنیا میں کیا اویلیبل ہے, سب کچھ آپ کو ایک جگہ ملے گا. پھر اس سے بڑھ کر امپلائمنٹ, جو ہم 4 E's کی بات کرتے ہیں, ہم نے ایجوکیشن کی بات کی, امپلائمنٹ کے اندر پاکستان میں آج کون سی, آپ جب اس پر اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں تو آپ کی تعلیم, آپ کی قابلیت, آپ کے ایکسپیرینس, اس کے مطابق آپ کو اپرچونٹیز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے اندر چاہے پاکستان میں کوئی اسکالرشپ اویلیبل ہے یا امپلائمنٹ کی اپرچونٹی اویلیبل ہے یا دنیا میں کوئی اویلیبل ہے, وہ اے آئی بیسڈ, یہ آپ کو ڈیجیٹل یوتھ ہب, بچوں دس از گوئنگ ٹو بی یور فیوچر, یہ آپ کو آنا شروع ہو جائیں گی کہ آپ کے پاس آج پاکستان کے اس علاقے میں آپ کے مطابق یہ جاب اویلیبل ہے, دنیا کے اس علاقے میں آپ کے مطابق یہ جاب اویلیبل ہے. اور اس کے ساتھ ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن, ہاسپٹیلٹی سروسز, ان سب کا اتنا بڑا پورٹ فولیو مجھ کو پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے کہا کہ وسائل کی کمی کا اب رونا کوئی نہ روئے میرے آگے, ہم نے اپنے بچوں کی زندگیاں بنانی ہیں, اور ہم پاکستان کی تاریخ کا نہیں, ایشیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹیکنیکل ایجوکیشن کا جو ہے وہ ماڈل لے کر آ رہے ہیں. اس کے اندر چاہے بلو کالر جاب ہے, چاہے وائٹ کالر جاب ہے, چاہے گرے کالر جاب ہے, مطلب کہ ڈرائیور سے لے کے, کارپینٹر سے لے کے, الیکٹریشین سے لے کے, ویلڈر سے لے کے, نرس سے لے کے, اکاؤنٹنٹ سے لے کے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے لے کے, انجینئر سے لے کے, ڈاکٹر سے لے کے, آئی ٹی اسپیشلسٹ سے لے کے, سپورٹس کے ویٹرن سے لے کے, جس فیلڈ کی آپ بات کریں اس فیلڈ کے اندر جابز اویلیبل ہیں. چیئرمین یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان سوات یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا ڈیجیٹل یوتھ ہب نوجوانوں کے لیے نمایاں اقدام ہے. ڈیجیٹل یوتھ ہب پر نوجوانوں کے لیے تعلیم اور اہلیت کے مطابق مواقع دستیاب ہے. ہم ایشیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فنی تعلیم کا پروگرام لا رہے ہیں. بلیٹن میں اب آگے بڑھتے ہیں. بھارت کے جنگی جنون پر نیو یارک ٹائمز کی اہم رپورٹ جاری کر دی گئی ہے, جس کے مطابق بھارت اندرونی خلفشار سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے. اخبار کے مطابق پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے پاکستان پر الزام دھر دیا اور مودی نے کئی غیر ملکی سربراہان سے رابطے کیے. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی وزارت خارجہ میں سفارتکاروں کو بریفنگ میں حکام نے ہندوستان کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد گروپوں کی حمایت کرنے پر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا. بھارتی تجزیہ کاروں اور سفارتکاروں کے مطابق بھارت کو پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے دہشت گردانہ حملے کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. بھارت نے سینتاس معاہدے کو معطل, سفارتکاروں کو ملک بدر اور ویزے منسوخ کر دیے. بھارتی حکومت نے کشمیریوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا, جس سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بڑھ گئیں. پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں ہزیمت کا سامنا کرنے کے بعد بھارتی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے. امریکہ میں مقیم بھارتیوں نے مودی سرکار کی ایما پر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ٹائم سکوئر نیو یارک میں احتجاج کرنے کی کوشش کی. یہ نام نہاد احتجاج سرحدی دہشت گردی کے خلاف پہلے سے طے شدہ تھا. اس موقع پر پاکستانیوں کی کثیر تعداد ٹائم سکوئر پہنچ گئی اور احتجاج کو ناکام بنا دیا. بوکھلاہٹ کی شکار مودی سرکار نے سینکڑوں پاکستانی یوٹیوب چینلز کو بھارت میں بند کر دیا. مودی سرکار کا ایجنڈا بھارتی عوام کو سچ سے دور رکھ کر ہندوتوا کو فروغ دینا ہے.
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपनी रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर के एक और रहायशी अल्ताफ लाली को जाली मुकाबले में शहीद कर दिया, जिसे 22 अप्रैल को घर से उठा लिया गया था। कश्मीरी खातून ने वाक़े की तफसीलात से मुतालिक बताया कि पहले उनकी बहन को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जिसके बाद बहन को तो छोड़ दिया मगर अल्ताफ लाली को रोका गया। इसके बाद उनके अहले खाना को 6 बजे एनकाउंटर की इत्तला दी गई। कश्मीरी खातून ने कहा कि भारतीय फौज को मालूम था कि वो कमांडर नहीं था, तो फिर इसे क्यों शहीद किया। इससे पहले भारतीय फौज ने 24 अप्रैल को भी जाली मुकाबले में मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को शहीद कर दिया था। भारतीय फौज के झूठे एनकाउंटर की हकीकत आलमी सतह पर आया हो चुकी है। 1989 से अब तक 7,000 से ज्यादा कश्मीरियों का मावरा अदालत कत्ल किया जा चुका है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में दरिया जेहलुम में इजाफी पानी छोड़ने के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। भारत सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली के ऐलान को सच साबित करने की कोशिश करेगा। भारत ने पहले दरियाई जेहलुम में इजाफी पानी छोड़कर सैलाबी सूरत हाल का तासुर देना चाहा। इस कोशिश के नतीजे में मुजफ्फराबाद के इलाके डोमेल से 22,000 क्यूसेक का रेला गुजरा। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली के बाद मगरबी दरियाओं की निगरानी वजारत आबी वसाइल और वापडा कर रहे हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान की पानी की ज़रूरियात को खतरा लाहिक नहीं है। भारत के पास मगरबी दरियाओं पर महज 624 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की मजमूई गुंजाइश मौजूद है। इसके मुकाबले में सिर्फ पाकिस्तान के मंगला में 7.35 मिलियन एकड़ गुंजाइश है। लिहाजा पाकिस्तान के पानी की फाहमी के हवाले से कोई खास या मुस्तकिल रुकावट मुतवक्के नहीं है। माहिरीन के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली के तनासुब में फास्ट ट्रैक बुनियादों पर बड़े आबी ज़खायर की तामीर नागुज़ीर है। वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं कि पहलगाम वाक़े की तहकीकात के बगैर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया गया। दुनिया शाहिद है कि भारत कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर काबिज़ है, लेकिन भारतीय मज़ालिम के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत मुतज़लज़ल नहीं हुआ। इंडिया के ख्याल है कि हम इस तरह इल्ज़ामात लगाते रहेंगे और वही जो बकाया हमारे मजलूम कश्मीरी वही जदोजहद कर रहे हैं उनको मजीद दबाएंगे। उनके वही 5 अगस्त 2019 को उन्होंने जो कुछ किया उनको उनके ज़मीनों को भी लेंगे, उनकी वही शक्ल भी चेंज करेंगे, बाकाया इंडिया से भी लोग लाएंगे और उनके साथ इस बहाने की आड़ में, इस झूठे इल्ज़ाम की आड़ में उनके साथ मजीद ज़्यादतियाँ करेंगे। नंबर 1। दूसरी उनकी ये बात कि हम ये थ्रेट्स देते रहेंगे तो पाकिस्तान जो कश्मीरियों की हिमायत कर रहा है उसकी हक में बात कर रहे हैं दुनिया की हर फोरम पर, यहाँ भी और यहाँ से बाहर दुनिया में भी, पाकिस्तान इससे दब जाएगी और वही हिमायत छोड़ देगा। तो हम दोबारा उनको कहना चाहते हैं कि ये आपके दोनों बातें कभी कामयाब नहीं हो सकती। बात में तकरीबी हलफ बर्दारी से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने का जीता जागता सबूत है। दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदारों का तर्ज अमल गैर जिम्मेदाराना है। अमीर मकाम ने कहा कि अवाम की खिदमत मुस्लिम लीग नून का वतीरा है। कायद नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया। उनकी पुष्ट पर होगी। मैं समझता हूं कि आज जब पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन है, जब पाकिस्तान इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है, दुनिया के अंदर जाकर हमारी बात हो रही है और यहां पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को मुनक्किद किया जा रहा है, दुनिया भर के लोग आकर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और हमारे वजीर आजम सबको दावत दे रहे हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, कि मेरे वजीर आजम हाउस का दरवाजा खुला है, मगर दुश्मन को ये बात पच नहीं रही। और सिपा सलार ने जो बात की है आपके सामने ओवरसीज कॉन्फ्रेंस में, वो आपके सामने है, वो हमारे सामने है कि हम अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। ये बलोचिस्तान हो,
یہ خیبر پختونخوا ہو، یہ پنجاب ہو، یہ سندھ ہو، یہ گلگت بلتستان ہو، یہ آزاد کشمیر ہو، یہ پاکستان کا حسن ہے، اور اس کا دفاع کرنا ہماری فورسز کے سربراہ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ نہیں کہہ رہے، بلکہ 24 کروڑ عوام کہہ رہی ہے، اور وہ ان کی پشت پر ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے سپہ سالار پاکستان کو کہ آپ آگے بڑھیے، ہم ان کی دھمکیوں سے، ان کی پھپکیوں سے، ان کی باتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جب وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ عالمی سطح پر اس کی تحقیقات کروائی جائیں اس واقعے کی، تو مودی بخلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ آج ہندوستان بخلاہٹ کا شکار ہو گیا، کیونکہ ان کی جو منصوبہ سازی تھی وہ ناکام ہو گئی۔ آج کوئی ملک بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا، بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جب قومیں متحد ہوتی ہیں اور یکجاں ہوتی ہیں تو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کسی نے ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھا، اس کی آنکھیں نکال دی جائیں گی کہ انشاءاللہ ہم اس پرچم کے سائے تلے ایک ہیں انشاءاللہ۔ یہ پرچم انشاءاللہ ہمیشہ بلند رہے گا، اور پاکستان سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں نعرے ہم لگائیں گے۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر اس کی حفاظت کریں گے۔ ہاتھ کھڑا کر کہیں کوئی انشاءاللہ کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں وحدت اور یونٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ہماری بہن محترمہ مریم خان صاحبہ کمشنر فیصل آباد بھی تشریف لیں، ذیشان اصغر صاحب RPO فیصل آباد وہ بھی تشریف لائے۔ اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولیں لا الہ الا اللہ۔ اور ہمارا تمہارا رشتہ کیا؟ ذرا اونچی بولیں، ہمارا تمہارا رشتہ کیا؟ اہل فلسطین اور اہل غزہ سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد فیصل آباد میں قومی یکجہتی کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ترقی و استحکام کی جانب گامزن ہے، دشمن کو پاکستان کی ترقی و استحکام ہضم نہیں ہو رہا۔ پاکستان سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں، یہ پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا، دشمن جان لے ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ دیگر خبروں کو جانب بڑھیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پہلگام واقعے پر پاکستان کا موقف واضح ہے۔ دہشت گردی کی جنگ میں ہم نے ہزاروں جانوں کی قربانی دی، جبکہ معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ اسلام آباد میں غیر ملکی میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کا پانی روکنے کی کسی بھی کوشش کو جنگی اقدام سمجھا جائے گا۔ پاکستان اپنی سالمیت اور خود مختاری کا دفاع کرنا جانتا ہے، کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں انیس آوان۔ پہلگام واقعے کے حوالے سے غیر ملکی میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان خود گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائیاں جاری ہیں۔ بھارت کے علاوہ پوری دنیا نے جعفر ایکسپریس واقعے کی مذمت کی۔ India is involved in state-sponsored terrorism. Had we not apprehended Kulbhushan Yadav and was involved in espionage in Pakistan, you all witnessed the Jafar Express episode. We received condemnation from all over the world. Why is it that our eastern neighbor
refrain from condemning the Jafar Express episode. Transnational assassinations are taking place through the Indian-sponsored state terrorism. वजीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पुरअमन मुल्क है। उन्होंने कहा कि हम की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में तावन की पेशकश की है। Any attempt to divert or stop Pakistan's water will be responded to with full force and full might. And the National Security Committee has already said that this will be an act of war. We are capable, we are ready to counter any misadventure with full force and might. Pakistan has always defended itself. Pakistan will always defend itself. Pakistan has the capacity to respond effectively like we did in the aftermath of the Pulwama incident. अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि भारत के अंदर से पहलगाम वाक़े के हवाले से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। वाक़े के बाद कश्मीर के मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। The Pahalgam area is more than 150 kilometers away from the line of control. And why pin the blame on Pakistan? Is it possible for any investigating agency to register a first information report, an FIR, 10 minutes after an incident has taken place? And right after this incident, the atrocities that are taking place in Kashmir, they're the worst kind of atrocities that you can imagine. एक सवाल के जवाब में वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद हम अपने दोस्त मुल्कों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, जबकि भारतीय बयानिए को आलमी सतह पर कोई हिमायत नहीं मिल रही। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान एक बेहतरीन, खुद मुख्तार और पुरसुकून मुल्क है, मगर जहां बात आ जाए पाकिस्तानी सिक्योरिटी की, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वहां मैं पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ खड़ा हूं और हालिया होने वाले वाकये की मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान कोई बिल्कुल ही ऐसे मुल्क है और अटैक कर देंगे और हम खामोशी से देखते रहेंगे? अगर आप न्यूक्लियर पावर है तो हम भी न्यूक्लियर पावर, लेकिन जब मुल्क की बात होगी वहाँ हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, नेवी के साथ हैं, एयरफोर्स के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बात हम सिर्फ कहते नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात को मानते भी हैं कि पाकिस्तान के दिफा के लिए पाक फौज का एक सिपाही भी काफी है। तो आप किस कुछ फहमी नहीं है, क्योंकि पाक फौज के साथ पाकिस्तान की सारी अवाम खड़ी हुई है। पाकिस्तान इटसेल्फ इज अ पीस लविंग कंट्री। हम जितने भी पाकिस्तानीज हैं, मुझ समेत, वो अपनी आर्म फोर्सेस के लिए कहते बहुत ज़्यादा प्राउड हैं और हम जो है हर चीज़ में उनके साथ शाना बशाना उनके साथ खड़े हुए हैं। इंडियन साइड को हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि होश के नाखून पकड़ें, पाकिस्तान पर बुरी नज़र डालेंगे या कोई भी एडवेंचरिज्म करने की अगर जुर्रत की तो आप पे ऐसी जर्ब लगाएंगे, आपकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। एंड व्हाइल यू प्लान फॉर एनी एडवेंचरिज्म, remember we are preparing very calmly a cup of tea which will be served to you warm, real and unforgettable. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तानी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है और भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। नामवर पाकिस्तानी शख्सियात का इस हवाले से ये कहना है कि पाकिस्तान खुद मुख्तार, पुरसुकून और पुरअमन मुल्क है। जहां बात आ जाए पाकिस्तान की सलामती की तो इस पर कोई समझौता नहीं होगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने अपनी जालिमाना कार्रवाइयाँ तेज़ करते हुए मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों और घर घर छापों के दौरान मजीद सैकड़ों बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया और कई घर बारूद से उड़ा दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज, पैरामिलिट्री, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और तहकीकाती इदारे NIA के एहलकारों ने श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, बारामूला, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, इस्लामाबाद, चुपैयां, कुलगाम और पुलवामा समेत मुख्तलिफ इस्लामिक कार्रवाइयाँ की। सिर्फ श्रीनगर में 65 से ज़ायद घरों पर छापे मारे गए। फोर्सेस के एहलकारों ने छापों के दौरान मकीनों को हिरासत किया, सामान की तोड़ फोड़ की और कीमती अशिया लूट लीं। पूरे मकबूजा जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता चंद दिनों में 2000 से ज़ायद कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। भारतीय फोर्सेस ने बांडीपुरा, कुपवाड़ा, शुपैयां और पुलवामा के इस्ला में मजीद 5 कश्मीरियों के मकान धमाका खेज मवाद से उड़ा दिए। ये घर आमिर नज़ीर वानी, जमील अहमद शेर गोजरी, अदनान सफ़ी डार, आमिर अहमद डार और फारूक अहमद के थे।
धमाकों से दर्जनों नजदीकी मकानात को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा और मकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। पहलगाम हमले के बाद मसमारी की इन ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में अब तक कम अज़ कम 12 कश्मीरियों के घर मुकम्मल तौर पर तबाह किए जा चुके हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कश्मीरियों के खिलाफ जारी जुल्म और सितम की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने गिरफ्तारियों और घरों को मिसमार करने की कार्रवाइयों को भारत का गासिबाना कब्जा तस्लीम करने पर मजबूर कराने की नाकाम कोशिश करार दिया। तर्जुमान ने आलमी बिरादरी और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों पर जोर दिया है कि वो भारत के जालिमाना इक़दामात का फौरी नोटिस लें। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान की जानिब से मुल्क में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 54 खारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक 25 और 26 अप्रैल के दरमियानी शब और फिर 26 और 27 अप्रैल के शब शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के रास्ते बड़ी तादाद में खारिज की नकलो हरकत को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त नाकाम बनाया। कामयाब कार्रवाई करते हुए तमाम 54 खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। हलाक शुदगान से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। ISPR ने कहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खारिज अपने गैर मुल्की आकाओं के इशारे पर पाकिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने के लिए दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। बयान के मुताबिक ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहा है, फितनाउल खारिज की ये कार्रवाई वाज़ेह करती है कि वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। ऐसी कार्रवाई रियासत और आवाम के साथ गद्दारी के मुतरादिफ है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ज़िला शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में अफगानिस्तान से फितनाउल खारिज के दहशतगर्दों की दरअंदाजी की नाकाम कोशिश को तमाम 54 खारिज दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों के दिफा और दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए अपने अज़्म में गैर मुतसलसल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शानदार पेशेवराना महारत का मुजाहिरा करते हुए दहशतगर्दों को बर वक्त रोका। उन्होंने कहा कि ये कामयाब कार्रवाइयाँ इस बात की निशानदही हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है और दहशतगर्दों के खिलाफ अहम कामयाबियाँ हासिल कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान की बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार हैं। दहशतगर्दों की दरअंदाजी नाकाम बनाना बड़ी कामयाबी है। सदर ममलकत ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और मुल्की सरहदों की हिफाजत के अज़्म का इआदा किया। और अब आपको लिए चलेंगे खेल के मैदानों में। छोड़ देगा वो आधी को लेके हाथ में रुख मोड़ देगा जो मिलके बन नु मैक्स करो ना कलियां कलियां फ्लेक्स करो यही सोच के आगे मैं सारी दुनिया कहती है ओ किंग ऑफ बंगड़ा एक है। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल में खुशामदीद। PSL 10 के दिलचस्प और सनसनीखेज मैचेस जारी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में आज आराम का दिन है। इवेंट के 18वें मैच में कल मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में दोनों टीमें 13 मरतबा मद्दे मुकाबिल हो चुकी हैं। मुल्तान सुल्तान्स को 9 मैचेस में कामयाबी मिली, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 4 मुकाबले अपने नाम किए। रवा सीजन में मुल्तान सुल्तान्स को 6 में से 5 मैचेस में नाकामी का सामना करना पड़ा, जबकि 1 मैच में कामयाबी हासिल हुई। PSL के दिलचस्प मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तीसरी कामयाबी। पेशावर ज़ल्मी को 64 रन से हरा दिया। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया गया। तफसील जानते हैं निसार मेहदी से। क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। ओपनर्स ने क्वेटा की टीम को 46 रन का आगाज दिया। कप्तान सऊद शकील ने 32 और फिन एलन ने 31 रन स्कोर किए। रायली रोसो 27 रन बना सके। फिर साउथ को फिर वहीं पर गेंद और वही रिजल्ट और आउट नहीं पहुंचा सके और इस गेंद को पहुंचाया, बॉल कर दिया। मार्क चैपमैन ने 33 और कौशल मेंडिस ने 32 रन की इनिंग्स खेली। और सीधा शॉट बड़ी जोर से मारा है, आते ही शानदार शॉट। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से अलजारी जोसेफ ने 3 और साइम अयूब ने 2 विकेटें हासिल की।
जवाब में पेशावर ज़ल्मी के बल्लेबाज कोयटा के बॉलर्स को इत्तेमाद से न खेल सके और पूरी टीम 15.2 ओवर्स में 114 रन बनाकर आउट हो गई। अच्छी गेंद थी, पलटकर अपील की और मिल गया जवाब अंपायर से और बोल्ड हो गए, शफल करते हुए आ गया है। आवाज आई है श्योरली, राशिद रियाज को भी आई। हुसैन तलत 39 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद हारिस 17, मिचेल ओवन 15 और कप्तान बाबर आजम 12 रन बना सके। ग्लैडिएटर्स की जानिब से फहीम अशरफ ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। और ये मैच इख्तिताम को पहुंचेगा, ये चौथा कैच रैली रूसो का। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने डबल किया है। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आधा सफर तय। 34 में से 17 मैचेस खेले गए। लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स ने अब तक 6-6, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 5-5 मैच खेले। पॉइंट्स टेबल पर दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम अपने तमाम 5 मुकाबलों में कामयाबी के बाद 10 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर विराजमान है। लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के 6-6 पॉइंट्स हैं। ताहम नेट रन रेट की बुनियाद पर कलंदर्स दूसरे, ग्लैडिएटर्स तीसरे और किंग्स चौथे नंबर पर हैं। पेशावर ज़ल्मी की टीम 4 पॉइंट्स के साथ 5वें और मुल्तान सुल्तान्स 2 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के 2 मैचेस रीशेड्यूल कर दिए गए हैं। पीसीबी के मुताबिक 1 मई को मुल्तान में शेड्यूल मैच लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। 1 मई को कज़ाफी स्टेडियम में डबल हेडर होगा। मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स दिन 3 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच रात 8 बजे खेला जाएगा। 10 मई को मुल्तान में शेड्यूल मैच अब 11 मई को रात 8 बजे मुल्तान ही में खेला जाएगा। तब्दीली का फैसला ऑपरेशनल आसानी और हालिया हीट वेव के पेश नज़र किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक 1 मई को मुल्तान के मैच के टिकट वापस कर दिए जाएंगे, जबकि लाहौर में 1 मई के टिकट होल्डर अब डबल हेडर एंजॉय करेंगे। मुल्तान में 10 मई के मैच के टिकट 11 मई को कारामद होंगे। PSL स्पेशल से फिल वक्त इतना ही। और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माहौलियाती तब्दीली और मालियाती शोबे में जुर्रतमंदाना इस्लाहात के अज़्म का इज़हार करते हुए कहा है कि हुकूमती इक़दामात की बदौलत मुल्क की मईशत बहाली और तब्दीली की राह पर गामज़न है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हम ऐसी मईशत हमने संभाली थी जो मुश्किलात का शिकार थी। हुकूमत अवामी कर्ज का GDP से तनासुब 75% से कम करके 67.2% किया, जबकि कर्जों के हजम को दरमियानी मुद्दत में 60% से भी कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी से हर साल GDP का 2% बचने की तवक्को है। उनका ये भी कहना था कि महंगाई में तारीखी कमी हुई, ज़र मुबादला के ज़खायर 2 गुना हो गए और रुपए की कीमत में 3% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि मार्च में करंट अकाउंट सरप्लस $1 अरब से ज़्यादा रहा। गैर मुल्की सरमायाकारी में 44% और IT बरामदात में 24% इजाफा हुआ। उनका ये भी कहना था कि तरसीलात ज़र $38 अरब तक पहुँचने का इम्कान है। 24 साल बाद पहली बार मालियाती सरप्लस हासिल किया गया। फिच ने भी पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग B मुस्तहकम आउटलुक के साथ अपग्रेड की। who have come all over Kazakhstan regions and for the first time participate in Karachi. Thank you very much for being with us and showing your trust and confidence in the Pakistan industry. Pakistan and Kazakhstan enjoy a deep-rooted historical, cultural and fraternal ties. Our relationship is built on mutual respect, shared values, and a common vision for regional peace and prosperity. I'm pleased to share that both sides are signing a comprehensive roadmap for enhancing cooperation in key sectors, including trade, investment, industrial collaboration, and regional connectivity. This roadmap, ladies and gentlemen, reflects a well-defined and forward-looking approach that will guide our partnership in the years to come. I'm also delighted to announce that Pakistan and Kazakhstan have finalized a memorandum of understanding on cooperation in the field of e-commerce.
This MOU represents a milestone in our efforts to embrace digital transformation and create a modern, inclusive, and innovation-driven economic framework. E-commerce will be a catalyst in facilitating cross-border trade, empowering SMEs, and opening up new avenues for entrepreneurs, particularly our youth and women. Ladies and gentlemen, connectivity is the cornerstone of regional economic development. In this context, Kyrgyzstan's interest in utilizing Pakistan's seaports at Karachi and Gwadar for its trade with the rest of the world is a welcome and strategic development. The potential of our transit strategic potential has not touched even 10% of its true outcome. Pakistan offers Kazakhstan the shortest and most effective route to the Arabian Sea and beyond. Here, I would emphasize early finalization of the transit trade agreement between the two countries to provide institutional framework, which would further benefit and enhance trade numbers. This would ensure seamless movement of transit cargo of both countries across our seaports, land borders, and territories. We are pleased that the Honorable Minister of Transport of Kazakhstan is personally visiting Karachi port to witness first-hand facilities, infrastructure, and logistics potential Pakistan has to offer, which would benefit the Honorable Minister and the delegates of the actual infrastructure which can really be seen with their own eyes. We are confident that these visits will pave the way for greater collaboration in transport, logistics, and transit trade. Today's forum, ladies and gentlemen, provides a timely opportunity for our businesses, communities to explore new ventures and forge partnerships across a wider spectrum of sectors. Sectors such as textile, agriculture, food processing, pharmaceutical, leather, ICT, and many more. And I was surprised to know today when the Honorable Minister mentioned that nearly more than 1 million skin pieces from Kazakhstan go to waste. And all these potentials can have a route to Pakistan to be explored and used over here. While during our bilateral meetings, we emphasized on the fact of taking our delegates to Kazakhstan who can see this natural potential of these cow skins which can be used over here in Pakistan or vice versa or through joint ventures. Pakistan has, ladies and gentlemen, established a very strong institutional mechanism through the Special Investment Facilitation Council, which is SIFC, to ensure investor confidence, remove bottlenecks, and fast-track projects. An initiative which was taken which could streamline and bring things together in a much more efficient manner. It's been nearly more than 1 year to this institution, and every time we meet, the Honorable Prime Minister emphasizes on making it more efficient in terms of giving its true services to the projects which have a very good potential within Pakistan and abroad. Recently, being a member of one of the committees where A.T. Kearney, a very renowned consultant firm, is overseeing the function and how we can further enhance its capacity and its working for the overall environment. वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल खान पाकिस्तान काज़ाकिस्तान बिज़नेस फोरम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान काज़ाकिस्तान बिज़नेस फोरम का क़याम एक दूसरे पर एतमाद का इज़हार है।
अपहरण कांड 1999 भाजपा सरकार, कारगिल युद्ध 1999 भाजपा सरकार, संसद पर आतंकी हमला 2001 भाजपा सरकार, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला 2002 भाजपा सरकार, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला 2002 और 2017 दोनों बार भाजपा सरकार, गोधरा कांड 2002 भाजपा सरकार, पठानकोट आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, उरी आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, पुलवामा आतंकी हमला 2019 भाजपा सरकार, पहलगाम आतंकी हमला 2025 भाजपा सरकार। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। बिहार चुनाव करीब है और देश में जैसे ही चुनाव करीब आते हैं कहीं ना कहीं आतंकी हमला हो ही जाता है और युद्ध के बादल घिर जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अब इन्हें पाकिस्तानियों के कटे हुए सिर चाहिए। ठीक है, तो कौन जाएगा पाकिस्तानियों के सिर काटने? ये कवि जाएंगे या भाजपा के नेता जाएंगे या अंधभक्तों के भगवान खुद पाकिस्तान जाएंगे सिर काटने? दरअसल इनमें से कोई नहीं जाएगा। अगर युद्ध हुआ तो देश के गरीब किसानों के बेटे जो फौज में सिपाही बनकर भर्ती हुए हैं वो आगे भेजे जाएंगे। हमला आतंकियों ने किया है तो आतंकियों को चुन चुन कर मारिए, लेकिन आतंकियों को मारने की बजाय पाकिस्तान से युद्ध ठान लेना देश के हजारों सैनिकों की जान जोखिम में डालना है। जिस क्रूर आतंकी हमले को वजह बताकर पाकिस्तान से युद्ध करने की बात की जा रही है, उस आतंकी हमले में किसी भाजपा के मंत्री ने अपनी चूक क्यों नहीं मानी? देश के गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा क्यों नहीं लिखा? और प्रधानमंत्री को हमले के तुरंत बाद आतंकियों को धमकाने के लिए बिहार में रैली करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये सवाल मीडिया कभी नहीं पूछेगा और सरकार इन्हीं सवालों से मुंह छुपा रही। भारत में होने वाले तमाम दहशतगर्द हमले बीजेपी के दौरे इक्तदार में हुए और भारत के अंदर से ही मोदी हुकूमत को अब शदीद तनकीद का सामना है। मोदी हुकूमत की पॉलिसियां अवाम में बेचैनी और गुस्से का सबब बनने लगी हैं। भारतीय अवाम मोदी की नाकामियों पर सख्त सवाल उठाने लगी है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जुनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जुनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत शहीद बेनज़ीराबाद 48, सिब्बी, खैरपुर, पड़ीदन, सकरन 47, रोहड़ी, जैकबाबाद, तुरबत और दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का और एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।